Hi friends, now today we are going to discuss about the oscillations, chapter number 5 in the 12th class. But before that, we should know certain concept. Now we already discussed about the linear motion. When the body moves in straight path, then that is called as the linear motion. We already discussed about the circular motion. When the body revolves along the circumference of a circle, then that is called as the circular motion. Now in the case of the rotational motion, the body rotates along any axis. But here we have to discuss about the oscillations. Now what is that oscillations? A very simple example of that oscillation. If you consider one surface is taken, one horizontal surface is taken, and on that horizontal surface, if you consider any body, one body is taken, and if that body is attached with certain spring, this is the spring is taken and this body is taken, a rigid body is taken, suppose. Now when the body moves in this direction, when the body, by applying certain force, if you are applying certain force, and that body moves in this direction, and when the body is released, then due to that spring, that body moves towards the point of suspension. That means in the spring certain force is produced, that is called as the restoring force. And there is a displacement of the body from this mean position to certain position. Suppose that body moves in there. Therefore, this is nothing but the displacement of the body. Suppose denoted by a symbol, suppose x. That means when you are applying certain force, there is a displacement. And that body moves to and fro on this horizontal surface. Therefore, if you consider this is the mean position and this is suppose the extreme position, at the mean position the displacement is 0, and at the extreme position the displacement is maximum. Here is also one portion, that is the displacement is maximum. Suppose if we consider this is positive and suppose negative displacement. Therefore, the body moves along this extreme position, mean position, again extreme position, and such type of motion, which is a periodic motion, that is nothing but the oscillation. They are nothing but the oscillations. Okay. Second example. If you consider spring is taken here, attached here. When you are applying certain load or the force, the body again oscillate in this direction. If you consider the pendulum, and when it is released from the extreme position, then again the pendulum oscillates around this mean position. अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते आप सिलाई मशीन का, इसका एग्जांपल लेते सपोज आप सिलाई मशीन का, ये टॉप होता है और यहां पे नीडल होती है, वो नीडल यहां से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, इधर जाएगी. तो जैसी वो नीडल, जैसे अपन पेडल लगाते हैं तो नीडल ऐसी ऊपर नीचे जाती है. दिस इज आल्सो नथिंग बट द ऑसिलेशंस. देयरफॉर अब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है ऑसिलेशंस के बारे में.
अब जब हम ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे हमने ऑसिलेशंस के बारे में कंसेप्ट देखा कि ऑसिलेशन में बॉडी टू एंड फ्रो मूव होती है अराउंड द मीन पोजीशन, इतना हमने कंसेप्ट देखा इसमें ऑसिलेशंस में। अभी ये अगर बॉडी टू एंड फ्रो मूव हो रही है तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ये अगर मीन पोजीशन लिया मैंने, बॉडी इधर गई, इधर से फिर मीन पोजीशन पे आई, मीन से एक्सट्रीम पे गई, एक्सट्रीम से फिर से अपने जगह पे आई, तो इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अगर इसका ऑसिलेशन इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। देयरफॉर पहली डेफिनेशन है हमारी पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स डिस्क्राइब इट्स पाथ अगेन एंड अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जांपल देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन सम इलिप्टिकल ऑर्बिट, द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ every 27.2 days, motion of minute hand, second hand and the hour hand of a clock, therefore this is the periodic motion। अब ये होने के बाद में हमें जो बेसिकली डिस्कस करना है वो हमें करना है लीनियर एसेशन। क्या डिस्कस करना है हमें? लीनियर एसेशन। अब इसमें दो है, इसमें एक है तुम्हारा लीनियर एसेशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा एक है दैट इज द एंगुलर एसेशन। एंगुलर एसेशन तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले लीनियर एसेशन और उसके बाद में हम देखने वाले हैं एंगुलर एसेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले लीनियर एसेशन के बारे में। अब देखिए नाउ व्हाट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जब हम डिस्कस करेंगे तो पहले मैंने एक स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था, तो इसमें देखिए एक है फोर्स, किसका कंसेप्ट है? फोर्स, और दूसरा एक कंसेप्ट किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। तो अब देखिए जितना फोर्स यहां पे लगाएंगे आप उतना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ रहे ना? जितना फोर्स इसको हम लगाएंगे इधर इस साइड में तो उतना इसमें एक्सटेंशन होगा। दैट मीन्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट। अब आपको मन में लग रहा होगा कि ये कौन सा फोर्स, देखिए ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है, लेकिन ये स्प्रिंग के अंदर में इन इक्वल अमाउंट कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये है वो रिस्टोरिंग फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे कौन सी साइन है? नेगेटिव साइन। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो करते हैं मीन पोजीशन से। कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। और रिस्टोरिंग फोर्स किधर रहेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन and therefore the direction of the displacement and the force both are opposite and hence we put negative sign. Now see the definition of the linear equation. Linear simple harmonic motion is defined as the motion of a particle in which magnitude of restoring force or the acceleration is directly proportional to linear displacement of the body from the mean position and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एक्सेलरेशन। आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां फोर्स है वहां किसका कंसेप्ट आएगा? एक्सेलरेशन का, क्योंकि बॉडी का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x और f इज इक्वल टू माइनस kx। और व्हाट इज k? k इज नथिंग बट द restoring force constant. K is nothing but the restoring force constant, that K is equal to F by X. F by X. तो देखिए इसमें आपने क्या डिस्कस किया? इसमें आपने सबसे जो पहला पॉइंट डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है आपने फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। ये आपको एक इक्वेशन मिला है।
दिस इज द लीनियर एसएचएम। अब हमें डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अब थोड़ा एक जनरलाइज देखिए आप कि आपने सपोज एक पेंडुलम ले लिया, आपने सपोज ऐसा एक पेंडुलम ले लिया आपने, इसको मैं मीन पोजीशन कहता हूं और इसको सपोज मैं एक्सट्रीम पोजीशन कहता हूं। तो पेंडुलम में ऐसा ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, पेंडुलम क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। देखिए ये हमने एक पेंडुलम कंसीडर किया, ठीक है। तो ये पेंडुलम जैसे मैंने ऑसिलेट हो रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो थोड़ा आपने सोचिए क्या, ये जब पेंडुलम जब ऑसिलेट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ मीन पोजीशन पे, इसकी वेलोसिटी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कोई कहने के वेलोसिटी, इसकी अगर वेलोसिटी है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है, यानी एक अगर हमने एसएचएम लिए तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या, यानी when the body performing the linear SHM we have to discuss the three terms, that is the displacement, velocity and the acceleration। और ये सब डिस्कस करेंगे हम, तो उसके लिए हमें उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या डिराइव करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। और ये जब इक्वेशन हम जब डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डायग्राम में एक मीन पोजीशन बताया O, एक्सट्रीम पोजीशन A और B, और एक इसने पॉइंट लिया P, कितने दूरी पे, x दूरी पे, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक हमने पार्टिकल लिए जो लीनियर एसएचएम फॉलो कर रहा है। अब देखिए जब इक्वेशन आपको डिराइव करना है, वेरी सिंपल है, इसमें एक 2 इक्वेशन लो, उसको इक्वेट करो, आंसर मिला। कैसा, हमें लीनियर एसएचएम का पहला इक्वेशन कौन होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड दिस एक्सेलरेशन इज कैन बी रिटन एज d2x by dt square. This is the second order differential equation. How? We know that acceleration is equal to what, dv by dt, ddt. But what is v, dx by dt? Therefore this can be written as d2x by dt square. Therefore we write for the a is equal to d2x by dt square. This is equation number 2. Suppose equation number 2, ये 2 इक्वेशन लो, 1 और 2, दोनों को इक्वेट करो और इसका इक्वेशन ले लो, वेरी सिंपल। देखिए इधर आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया, f is equal to माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma, दोनों को इक्वेट किया, आपको मिला a is equal to माइनस के एक्स बाय m, और ये जो k बाय m, इसके लिए हमने पुट किया है ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द कांस्टेंट, एंड देयरफॉर a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बट a is equal to what, d2x by dt square, and therefore in place of a what you write, d2x by dt square is equal to minus omega square x. Therefore d2x by dt square plus omega square x equal to 0, which is the second order differential equation of linear SHM. दोनों को इक्वेट करके आपको इक्वेशन मिला है, कौन सा इक्वेशन मिला है, d2x by
dt square plus omega square x is equal to 0. And what is omega square? Omega square is equal to k by m. ये आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अभी ये जो आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे? एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। इसलिए हमारी नई हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। सबसे पहला है हमें एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। यह आता है एग्जाम में 2 मार्क्स नहीं तो फिर 3 मार्क्स के लिए। अब ये जब एक्सप्रेशन हम बनाएंगे किसकी मदद से लेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is the second order differential equation. But this term is nothing but what? Acceleration, and therefore this a is equal to minus omega square x. Now this a is nothing but the acceleration, and therefore this is the equation of what? Acceleration. This is the equation of what? Acceleration. But here we have to calculate the expression for the velocity. Now we have to arrange this term. Now a is nothing but what? dv by dt. Therefore dv by dt is equal to minus omega square x. Now dv by dt multiplied by dx and divided by dx is equal to minus omega square x. Therefore dv by dx and dx by dt, इसको थोड़ा अरेंज करें, dx को इधर लाए, dt को इधर लाइए, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस dx by dt इज नथिंग बट व्हाट? v इंटू dv। dx को उधर लेके जाइए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। x के साथ dx की टर्म, v के साथ में dv की टर्म। आप इसमें ये डेरिवेशन में अगर आप देखते हैं इस तरीके से दिए, ये दिया dv by dt अरेंज किया हमने, dx by dt is nothing but the velocity, v is equal to this equation. Now we have to calculate the expression for the what? Velocity. Now separating the variables and take the integration. इसका आप लीजिए इंटीग्रेशन, क्या लीजिए आप? इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2। यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं आने 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 इधर आया, वो भी नीचे में आया 2, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकला, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 कांस्टेंट टर्म दैट इज c। c इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन पे इक्वेशन नंबर 1 मिला, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ we have to calculate the value of that c. First calculate the value of c and put that in the equation. How will you calculate the value of c? देखिए जब हम c की वैल्यू निकालेंगे, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, ये लीजिए मीन पोजीशन, ये लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल की वेलोसिटी जो रहती है एक्सट्रीम पोजीशन पे रहती 0, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट व्हाट? a। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? a। और इस समय वेलोसिटी कितनी रहती है? 0। ये कंडीशन, ये इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और इससे हमें c की वैल्यू मिलेगी, c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। सपोज इक्वेशन नंबर 2 ये जो मिला है। अब c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा? वेलोसिटी का। देखिए हमने कैसा किया है, c की वैल्यू मिली, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हमने c की वैल्यू, ये वाली ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, therefore v square is equal to omega square a square minus
x square. Therefore v is equal to plus minus omega a square minus x square. Now this is the expression for velocity. V is equal to plus minus omega under root of a square minus x square. A square minus x square. But what is a? Is nothing but the amplitude. Now this is the expression for velocity of a particle in terms of displacement, and the direction of velocity depends upon the direction which the particle is moving. यह हो गया आपके लिए एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. अब ये होने के बाद में हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालते समय में हम फिर से उसी की मदद लेंगे. कभी कभी एग्जाम में ओनली डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है 3 मार्क्स के लिए, तो आपको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले वेलोसिटी निकालने के बाद में इधर जाना पड़ेगा. तो इसके पहले अभी हमें इक्वेशन मिला था. कौन सा इक्वेशन मिला था? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट व्हाट इज वेलोसिटी? dx by dt. dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इसका हम dx के जगह ये टर्म लेते हैं, ओमेगा t इधर लिखे जाए. देखिए कैसे. dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt. और इसका हम क्या लेंगे? फिर से इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा इंटू t प्लस फाइव. ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव. फिर फाइव इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बाद में देखेंगे फाइव के बारे में, स्पेशल केस है. इसको हम इनिशियल फेज भी कहते हैं. तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. x का यूनिट है मीटर, एम्पलीट्यूड का यूनिट आएगा मीटर. यानी दिस a इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एम्पलीट्यूड. तो x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होगी? ये डिपेंड होगी किसके ऊपर? ओमेगा टी प्लस फाइव के ऊपर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट. We get the equation of displacement, we get the equation of velocity, and we get the equation of acceleration. We cover this term. Equation of what? Velocity. This displacement x is equal to a sin omega t plus phi. And what is acceleration? Acceleration is equal to minus omega square x. These are the three equations of velocity, displacement, and the acceleration. यानी पार्टिकल अगर SHM फॉलो कर रहा है तो उसको वेलोसिटी है, उसको डिस्प्लेसमेंट है, उसको क्या है? एक्सेलरेशन है. ये बातें हमें पता चली. उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे अलग रह सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे अलग रह सकती है, एक्सेलरेशन अलग रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा. और ये सारे टर्म ये डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? ओमेगा टी प्लस फाइव के ऊपर. अब ये होने के बाद में हम देखते हैं इसके स्पेशल केस. क्या देखते हैं हम इसके स्पेशल केस? कि भाई डिस्प्लेसमेंट का स्पेशल केस क्या, एक्सेलरेशन का क्या, वेलोसिटी क्या. नाउ व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन से सारा, तो इनिशियल टाइम कितना रहेगा? 0. और x की वैल्यू भी कितनी रहेंगी? 0. अरे भाई ये यहाँ से चालू रही मीन पोजीशन में, तो इनिशियल टाइम कितना लूंगा मैं? 0. और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 0. ये वैल्यू अगर जब मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में यहाँ पे, यहाँ आएगा 0. साइन इनवर्स ऑफ 0, यहाँ 0 बाय a यानी 0. साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 5. therefore sin phi is equal to 0. that is 0 phi is equal to 0 or pi. देखिए साइन फाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या लिया हमने? फाइव. साइन इनवर्स ऑफ 0 इज नथिंग बट व्हाट? 5. देयरफॉर देखिए ना, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो फाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे? फाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 या फिर 5. 0 मीन्स इनिशियल
और पाई मीन्स एक पूरा यहां से लेकर इधर आएगा तो पाई। तो यहां पे आपको x का इक्वेशन क्या मिलेगा? x का इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू कितनी पुट करो आप? 0। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जब बॉडी यहां से चालू हो रही मीन पोजीशन से, बॉडी कहां से चालू हो रही है? मीन पोजीशन से, तब इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब आप ग्राफिकल इसका स्टडी करोगे तब आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन पे, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इसका इक्वेशन होता है कब से? when the particle start from the mean position। अब सोचिए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। अब बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है, यहां से, पहले यहां से थी बॉडी, अभी यहां से स्टार्ट कर एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से स्टार्ट कर रही है, इसलिए इसका इनिशियल टाइम कितना रहेगा? 0। और एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? एम्पलीट्यूड रहेगी भाई, इतना डिस्टेंस रहेगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? एम्पलीट्यूड। यानी कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। देयरफॉर पुट दैट वैल्यू, देयरफॉर साइन इनवर्स a by a, साइन इनवर्स ऑफ 1, देयरफॉर साइन फाई इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। यहाँ पे आप देखते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो यहाँ पे ये देखिए ना, अगर मैं इसका लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। साइन को इधर ला लो, तो आंसर कितना आएगा? 90। वहां से लिया। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 90, या फिर फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, दैट इज द 270। तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस आई के जगह कितना पुट करूंगा मैं? पाई बाय 2। पाई बाय 2 पुट करो या फिर 3 पाई बाय 2। लेकिन आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। x is equal to a cos omega t. This is the equation of the displacement when it start from the which position? Extreme position. पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? एक्सट्रीम पोजीशन, उसका इक्वेशन ये है। मीन पोजीशन स्टार्ट करता है, उसका इक्वेशन ये है। दिस ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे फाई की वैल्यू 0 रहेगी या फिर पाई रहेगी, ये ध्यान में रखिए आप। फाई की वैल्यू 0 या फिर पाई, और एक्सट्रीम पोजीशन में फाई की वैल्यू रहेगी 90 या फिर 3 पाई बाय 2। ये थोड़ा आपको आगे में स्टडी में काम में आएगा। इसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर एक्सट्रीम पोजीशन एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हमने अभी तक क्या क्या देखे? डिस्प्लेसमेंट देखे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वैसे हम क्या देखेंगे? वेलोसिटी का। क्या देखेंगे हम? वेलोसिटी का। अब देखिए x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई एट मीन पोजीशन, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और पाई, दैट इज x इज इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट? 0। अरे बराबर है ना, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 रहेगी ना, मीन पोजीशन x की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। अब देखो यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसकी वैल्यू कितनी पुट किया मैंने? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0। तो ये टोटल आंसर कितना आएगा? 0। और इसीलिए x मिनिमम इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। नाउ एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। मैंने हम पहले पता है यहाँ पे लिख के रखा है कि ओमेगा टी प्लस पाई इसकी वैल्यू आएगी इसकी। अब यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin पाई बाय 2। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 91, तो आंसर कितना आएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। यानी इसकी जो मिनिमम पोजीशन, मिनिमम वैल्यू होगी x की वैल्यू 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस a। कितनी होगी? प्लस माइनस a। दिस इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब ये भी कैसे निकालेंगे? देखिए निकालते समय वेलोसिटी का इक्वेशन लेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी रहती है 0, पुट करो x की वैल्यू 0 तो आपको कितना मिलेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, देयरफॉर v इज इक्वल टू a ओमेगा, दैट इज ये क्या होगी Vmax। Vmax इज नथिंग बट द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मुझे बताइए आप कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी वेलोसिटी मैक्सिमम, सोचो थोड़ा। वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी मीन पोजीशन, कहाँ पे रहेगी मीन पोजीशन। कभी भी ध्यान में रखिए आप, एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ Vmax होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी मीन पोजीशन पे, इसलिए बताया। अब लीजिए आप एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे लिए आप क्या पुट करेंगे x की वैल्यू a, x की वैल्यू a पुट करो इस इक्वेशन में, तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 0, वेलोसिटी कितनी रहेगी 0, यानी मिनिमम वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी मिनिमम कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, कहाँ रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। आप थोड़ा अगर इसको देखोगे आप तो देखिए, अगर इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ से तो मीन पोजीशन से हाई वेलोसिटी से जा रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आ रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुखे समान हो रहा है। तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम कहाँ रहेगी मीन पोजीशन पे। उसका फार्मूला है Vmax इज इक्वल टू a ओमेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द SHF, लीनियर SHF। तो एक समरी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इसमें लीनियर SHF में। इसका इक्वेशन देखा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसका हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसका हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला, ये निकाला है हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसका हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका हमने एक्सेलरेशन निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ पे होगी मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम कहाँ होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये हमने देखे। उसके बाद में मीन पोजीशन पे फाई हमने देखा था कितना रहेगा 0 या पाई, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे 90 या फिर 3 पाई बाय 2। इसकी एक्सप्रेशन देखे हमने वेलोसिटी का, और इसका हमने देखे क्या देखे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमें मिली 0 और मैक्सिमम वैल्यू मिली a ओमेगा। एक्सेलरेशन बताओ बता, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्सेलरेशन मैक्स बताओ, सोचो ना थोड़ा, कितनी होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे भाई x की जगह मैं कितना पुट करूंगा a, x की जगह कितना पुट करूंगा मैं a, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कौन सी पोजीशन पे होगी एक्सट्रीम पे, वेरी सिंपल। और एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी, सोचो x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं 0, तो एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ कितनी होगी 0, और वो कहाँ पे होगी मीन पोजीशन पे, कहाँ पे होगी मीन पोजीशन पे। तो थैंक यू, आपको थोड़ा समझा होगा। खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड स्टे एट होम। थैंक यू।